Good morning, students. Welcome. Today we'll start a new lesson, Androseles and the Lion. Long, long ago, there lived a king, gentle and courteous man called Androseles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androseles was a slave. The slaves were forced to work for their master. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. See what it is given this first para. Long, long ago, there lived a kind. It is a story about a man called Androseles. There lived a kind, gentle, and courteous man called Androseles, but he had a cruel master. Androseles नाम का एक व्यक्ति के बारे में ये कहानी है. He was a very kind, gentle, and courteous man. Okay, बहुत ही अच्छे इंसान, दिन के अच्छे इंसान रहे. But he had a very cruel master. Means he had a master, मतलब उसके जो master थे, मालिक थे, वो बहुत ही cruel थे. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Means in those days, kings, nobles, and other wealthy men, जो पैसे वाले लोग रहते, अमीर लोग रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने नौकर बना के रखते, एक स्लेव्स बना के, मतलब वो जो बोलते वैसा उनको करना है. तो एंड्रोसेल वॉज ऑल्सो ही स्लेव, वो भी एक नौकर थे. द स्लेव्स वे आर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर, मतलब ये जो नौकर वगैरह थे, स्लेव्स थे, जो उनके हाथों के नीचे रहते थे, उनको मजबूर किया जाता था उनको काम करने के लिए, अपने मास्टर्स के लिए, फॉर अपने मास्टर. ओके, अपने मालिक के लिए. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स, इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर. मीन्स उनकी अपनी कोई चाहते नहीं, कोई खुशी नहीं थी. दे हैड टू फॉलो this whatever their master said, whatever their master tells them to do, they will do that. They had no freedom, उनकी कोई अपनी स्वतंत्रता ये नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे, no rights and all. If they were unhappy with their master, अगर मालिक से नाखुश होंगे तो भी उनको काम वहीं पे करना है, उनको छोड़ के वो नहीं जा सकते हैं. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. They were bound by the law, मतलब उनको एक कायदा था कि इन लोग अपने मास्टर को फॉलो करना है, सुनना है, जैसे भी, अब कितने भी नाखुश हो, कितने भी उनको तकलीफ झेलना पड़े मास्टर के द्वारा, मालिक के हाथों से कितनी भी तकलीफ उठाना पड़े, फिर भी उनको उनका बात सुनना है और उनके लिए काम करना है. ओके. Androseles did not like his wicked master. Even Androseles, we are talking about the Androseles, he also did not like this master. He was a wicked man. His master starved his slaves and often whipped them. मतलब उसके मास्टर बहुत ही क्रूएल थे, वो अपने नौकर को क्या करते थे, मारते थे और चाबुक वगैरह लेके उनसे भी मारते थे. उनको खाना वगैरह नहीं दिया जाता. स्टार्व करना मतलब नॉट गिविंग द फूड, खाना वगैरह नहीं देना, उनको भूखा रखना. तो इस मास्टर वॉज वेरी क्रूएल पर्सन, ए विकेड मैन. ही यूज्ड टू स्टार्व हिज स्लेव्स एंड ऑफन विप दम, मतलब चाबुकों से उससे उन्हें मारा करते थे. एंड्रोसेल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच ए मास्टर. वॉट एंड्रोसेल वॉज वेरी फेड अप ऑफ ऑल दिस, वो बहुत तक गए थे इनकी मास्टर से. तो बोलते इससे अच्छा बेहतर है कि मुझे मर जाना चाहिए ऐसे मास्टर के नीचे काम करने से. He kept looking out for a good opportunity. Okay, now he was trying to get an opportunity so that he can run away from his master. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. After that, one day he got a chance also to get away and he escaped from his cruel master. एक दिन उनको मौका मिला भागने का, तो वो उस cruel master को छोड़ के वो भाग गए. Because he was torturing him and other slaves also. So he was very fed up of all this and he just wanted to run away from this master. Now although Androseles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest.
He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. What it is said, Androsil at this runaway he was not a coward. मतलब भले ही वो वहाँ से भाग गए पर वो कावर्ड नहीं थे, बुज़दिल नहीं थे. वो किससे परेशान हो गए थे, उनके मास्टर के जो ये थे तानाशाही वीकेंड से, मतलब वो उनसे बहुत तकलीफ देते थे, मारते थे, उनसे खाना नहीं देते थे वक्त पे, उनको तंग करते थे. सो ही वॉज वेरी फेड ऑफ ऑल दिस. सो ही जस्ट रैन अवे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुज़दिल थे. ही टुक शेल्टर इन हिज फॉरेस्ट. वेयर डिड ही टेक द शेल्टर, मतलब वो कहाँ आश्रय लेगी, फॉरेस्ट में जाके. ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द wild beast. Normally what normally what happened, we are afraid of the wild animals and all, but he was not afraid of the wild animals. What he did, he took shelter in the forest and roamed freely in the forest. He did not mind that he had no roof over this. He was not bothered that he did not had a roof. मतलब उनके सर के ऊपर छत नहीं है, इस बात का उन्हें कोई गम नहीं था. उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो एक इससे जंग अपने कैद खाने से बाहर है. वो खुश है कि वो अपने कैद खाने से बाहर है और अपने उनके मुताबिक उनको जैसे चाहिए वो वैसे घूम सकते, यहाँ वहाँ जा सकते. ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज ए बर्ड. उन्हें खुश था कि वो एक पक्षी की तरह, आज़ाद पक्षी की तरह कहीं भी आ जा सकते हैं. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in a great pain. So what happened one day? See, as he was wandering, मतलब यहाँ वहाँ भटकना. As he was wandering in the forest, मतलब जब वो फॉरेस्ट में वो ये घूम रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे. what he saw, he suddenly saw a lion face to face. मतलब उसके आंखों के सामने क्या है, he saw a lion was standing in front of him and they were facing each other. First reaction was to turn and flee. पहले क्या हो, थोड़ा देर के लिए हम लोग नेचुरली वाइल्ड एनिमल्स, लायन को आपके सामने आएगा तो आप क्या हो, डर जाओगे, तो आप क्या भागने की कोशिश करें. इवन ही थिंक अबाउट द सेम थिंग कि टू फ्ली अवे मतलब भाग जाना. टर्न एंड फ्ली का मतलब भाग जाना, वहाँ से मुड़ के भाग जाना. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. व्हाट डिड ही सी, द लायन डिडंट मूव एट ऑल. वो जहाँ पे था वहीं पे खड़ा था. ही डिडंट मेक एनी चेंजेस मूवमेंट इन हिज प्लेस फ्रॉम हिज प्लेस. ही नाइदर ग्रॉल्ड नॉर रोड. ही नाइदर ग्रॉल्ड और रोड मतलब ना तो उसने कोई गुर्राने की आवाज़ की, ना ही कोई ये किया, रोरिंग किया. ही लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ए ग्रेट पेन. मतलब वो उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो किसी दर्द में, तकलीफ में है. ही वॉज लुकिंग इन सच ए वे टुवर्ड्स एंड्रोसिल. एंड्रोसिल पॉज. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. The Androsil felt something. उनको महसूस होने लगा कि लायन शायद किसी परेशानी में या किसी दर्द में है. So he moved cautiously towards the lion. वो धीरे धीरे वो लायन के पास आने लग गए. Step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. मतलब वो लायन इस तरह इस नज़र से देख रहे थे एंड्रोसिल्स की, जैसे कि उनकी नज़र ये कह रहा है लायन का कि मुझे मदद करो, मैं दर्द में हूँ. इट्स आइज सीम टू से मतलब उसके आँखों से ऐसा झलक रहा था कि वो किसी दर्द में है, तकलीफ़ में है और उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं. और वो एक आशा भरी नज़र से एंड्रोसिल्स को देख रहा है. When एंड्रोसिल्स drew near, the lion lowered his head and began to lick his paw. Then Androsil saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. Okay, when Androsil came near to him, मतलब जब एंड्रोसिल उसके पास गए लायन के, the lion lowered his head मतलब अपने सिर को झुका लिए और अपने पैर को, पाव को लिक करने लगे, यानी चाटने लगे. Tongues animals you see that ना, they lick their body parts and all, तो लिक करने लगे. Then Androsil saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen.
तो एंड्रोसिल ने जस्ट सॉ द लायंस पाव, उसके पैर को देखने लगे तो उनको पता चला कि उसमें चोट लगी है और दर्द है और सूजन भी है. On a closer look, Androsil noticed that a big thorn had pierced on one of the lion's toes. So this was the cause of the lion's distress, thought Androsil. But when he came closer to the, see in this picture, when Androsil came closer to his paw and just looked on, what did he saw? He saw a thorn, एक कांटा लायन के पैर में चुभे हुए थे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहे थे, तकलीफ हो रही थी. So that was the reason why the lion was in pain. तो एंड्रोसिल ने जब उसके कदम देखे, पाँव देखे, मतलब लेग को देखे, तो उनको दिखा कि कांटा वहाँ पे चुभा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें लायन को काफ़ी तकलीफ हो रही है. Summoning up all his courage, Androsil stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that lion would attack him if he touched this swollen paw, but the lion seems to be understand his good intention. तो व्हाट डिड समनिंग अप ऑल इस करेज, मतलब अपने सारे करेज को इकट्ठा किया. अभी शेर के पास जाना, उसके पैरों को छूना, मतलब एक बहुत इट्स अ करेजियस स्टेप. ओके, ये कोई नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं एक एनिमल को ये करना, क्योंकि वो अटैक करेंगे आपको, दे विल किल यू. फिर भी उसने बहुत सी हिम्मत जुटा के अपने हाथ बढ़ा के स्ट्रेचेस एंड टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, उसकी जो लायन के पैर में जहाँ पे चोट लगी थी उसकी तरफ एंड्रोसिल गए, अपने हाथों से उसे पकड़ा. ही वॉज अफ्रेड दैट लायन वुड अटैक, उनको एंड्रोसिल को लगा कि लायन वुड अटैक हिम बिकॉज द सोलन पॉ वॉज सोलन. जब आपको चोट लगी रहती है, वो सूजन रही, दर्द रहेगा, तो जब कोई उसे छूता है तो आप चिल्ला उठते हैं, गुस्सा आता है आपको. तो ही थॉट द लायन विल ऑल्सो अटैक हिम, बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड इज गुड इंटेंशन. बट द लायन सीम टू, मतलब तब लायन को महसूस हुआ कि ये अच्छे इंटेंशन से मेरे पास आए, मेरे मदद करने के लिए मेरे पास आए, इसके लिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता. एंड्रोसिल टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, डिफिटली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, देन टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, द kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if it was to show his gratitude. Means what did Androsil do? He took the paw, उसको लायन का पैर को उसने अपने हाथों में ले लिए. He removed the thorn, जो कांटे उसके हाथ पैरों में चुभे थे लायन के, उसको आराम से निकाल लिया और फिर एक कपड़ा बांधे, जो आपको अपने बदन में जो कपड़े थे उसको फाड़ के उसने उसके पैरों में बांध दिए. टू हिज सरप्राइज एंड वॉन्डर, द लायन देन लिक्ड हिज आर्म. तो लायन फिर ये देख के लायन क्या किया, उसके हार्म को, मतलब उसको हाथों को लिक करने लगा. एंड्रोसिल के हाथ जो थे उसको लिक करने लगे, जैसे कि वो ये बताना चाहता है कि मैं आपसे ये हुआ, मतलब आपने जो मेरी मदद की इसके लिए शुक्रिया. ही वॉन्टेड टू शो दैट ग्रैटिट्यूड. Androsil remained with the lion till he could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androsil whenever he went. तो what did Androsil did? He remained with the lion till it could walk again. मतलब जब तक लायन ठीक से चल नहीं पा रहा था तब तक एंड्रोसिल लायन के साथ ही रहता था. वो बाहर जाके फॉरेस्ट में हंट करता था और जो खाना भी जो भी उसको मिलता था वो लायन के साथ शेयर करता था. ओके, शेयर इज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट. हेल्पलेस बीस्ट किसके लिए बताया गया? टू द लायन, बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, उसके पैर में चोट थी और जिसकी वजह से वो शिकार करने नहीं जा सकता था. इसके लिए इट इज tell that he was a helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. तो एवरी डे एंड्रोसिल्स क्या करते थे, इसके चोट को, लायन के चोट को क्लीन करते थे और पट्टी बांधते थे. Soon the lion was able to move. Many times it followed Androsil whenever he went. तो धीरे धीरे इसकी चोट, लायन की जो चोट है वो ठीक होने लगी और वो यहाँ वहाँ घूमने लगा. तो यूज्ड टू गो विथ एंड्रोसिल्स. ओके, एंड्रोसिल के साथ जाता था. इन द मीन वाइल एंड्रोसिल मास्टर हैड कंप्लेंट टू द authorities that his slave Androsil had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androsil. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to
द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोसिल्स लिव। सॉरी। तो व्हाट हैपेंड, एंड्रोसिल्स के मास्टर जो थे उन्होंने कंप्लेंट किया अथॉरिटी से, बड़े इनके जैसे सरकार वगैरह होते वैसे पहले के ज़माने में अथॉरिटीज़ वगैरह होते थे बड़े, तो उनको कंप्लेंट किया उन्होंने कि उनके जो स्लेव थे एंड्रोसिल, यस जस्ट रन अवे एंड द सोल्जर्स। पहले के ज़माने में क्या होता था, एक राइट होता था, जो भी स्लेव है ना, जो भी उनके हाथ किसी के हाथों के नीचे काम करने वाले लोग अगर उनके मास्टर की बात नहीं सुने तो उनको ज़बरदस्ती उनको फोर्स करके किया जाता था। जो भी बड़े लोग रहते थे अथॉरिटी, जो भी बड़े पावरफुल लोग रहते थे, वो लोग उनको फोर्स करते थे उनके मास्टर के साथ रहने के लिए। तो व्हाट हैपेंड, द सोल्जर्स वे सेंट, सोल्जर्स वगैरह जब को इनको बताया गया, अथॉरिटी को बताया गया कि एंड्रोसिल भाग चुके हैं, तो सोल्जर्स लोग सब इधर उधर सब ढूंढने लगे एंड्रोसिल को, कहाँ है वो, कहाँ गए हैं करके। दे सर्च फॉर हिम आई एंड लो, मीन्स हर जगह में जाके ढूंढने लगे कि वो एंड्रोसिल कहाँ है, ताकि उसको पकड़ के लेके। एट लास्ट दे केम टू नो दैट द फॉरेस्ट वेयर द एंड्रोसिल लिव। मतलब लास्ट में उनको पता चला कि एंड्रोसिल एक फॉरेस्ट में रहता है। ओके, द रिमेनिंग पार्ट दैट इज लेफ्ट आउट, सी हियर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दूसरे लेक्चर में आपको बचा हुआ जो स्टोरी है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी। अभी यहाँ मैं ये लेसन को ख़त्म करती हूँ। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी प्रोसीडिंग। थैंक यू।